Mishra from VSSD College Kanpur, and one of our members, Professor Rashmi Rekha from Lucknow University, informed me just now that she's unwell and she will not be able to join. So we start with this. As you all know that the agenda for today's meeting is to review the syllabus proposed under the National Education Policy 2020, which besides other things proposes CBCS system, that is the choice-based credit system, which allows the students to choose interdisciplinary and intradisciplinary courses. We here at the Kanpur University have been following the annual exam pattern till now, and मैडम आपकी आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है, okay, तेज कर दीजिए वॉल्यूम। फुल है वॉल्यूम तो। दूसरे लोग म्यूट कर लें। एंड व्हेन the person concerned speaks, okay, the volume should be unmuted, otherwise other people should mute. So we at Kanpur University have been following the annual exam pattern, and now we will have to switch over to the semester system with the implementation of this syllabus. We all, I think, have gone through the subject syllabus, and let me inform you all that we have the liberty of 30% change if needed. And I think I would invite suggestions of any kind of change or whatever you all want. So this 30% change is only allowed in course content. Course content, Otherwise, yes. whatever the government has decided, we cannot We change can't change the structure, we can't change anything else. Right. Your Right. members. Okay. Madam, may I intervene? May Yes, I ma'am. intervene? Yes, ma'am, Could you Yes, sure. just spell out the structure? How many credits you are giving it in BA courses? Because from the syllabus which you have sent, things are not very much clear. So if you can just spell out the structure, that how much credit course, because UGC prescribed something different, and what is your course structure is suggesting is little different. So could you just in brief tell us that what structure actually you have followed? For example, seeing the course structure, it appears that instead of going for BA honors, you have gone for BA general course structure. You have opted that structure. So honors is out. So even if it is honors, then as per the UGC norms, in total 132 credit of courses the student has to clear to get the BA degree. So your course structure which is अभी थोड़ी देर बात करेंगे भाई, तो उसको आप थोड़ा, if you will spell out the structure, only then we can discuss in detail about the course structure, because course structures would be the detailed one. So if she can brief out us what is the course structure, how many you are taking from application oriented course, how many from other courses, and how many from the discipline specific course. So if she can spell out that, then we can proceed further. Okay, Sophia ji, as convener, you should go on telling. Okay. सर, जैसा ये सिलेबस हम लोगों को मिला है, इसके हिसाब से फर्स्ट ईयर में हम लोग 2 सेमेस्टर्स हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, जो जिसके 6 क्रेडिट्स हैं, एंड नंबर ऑफ लेक्चर्स आर 90। सेकेंड सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया फ्रॉम 1206 to 1757. It also has 6 credits and 90. Sorry ma'am, कोर कोर्स और डिसिप्लिन स्पेसिफिक को अलग अलग स्पेल आउट कर देंगी तो हम अंडरस्टैंड बेहतर कर पाएंगे। मैम, इसमें हमें कोर कोर्स कोर कोर्स इसमें सर मैम मेंशन है नहीं,
हमको ये सिर्फ नहीं, डिसिप्लिन okay. ही Sophia ji, being convener, you should tell your expert that government on the basis of national education policy has decided this course जी with the help of the experts. मतलब we people have not made it. आप बताइए कि मैंने नहीं इसे जी बनाया है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से आया, गवर्नमेंट ने अपने जी एक्सपर्टीज ली है राय जी और इसके आधार पे उन्होंने भेजा है। सो जी 70% जो कोर्स है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, दैट नहीं इज हो द बाइंडिंग जी देयर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। And if हम 30% in course content there is going to be any change with the help of the opinion of the experts, then that is possible. So this course has been designed by the government and that has been sent to us to look into it, and whatever suggestions experts will be giving, okay, in separate sheet you will be writing all that, and 30% which is the relaxation has been given by the government, that you can incorporate with the help of the experts on the basis of only course content. Sophia ji. जी। तो मैम इस तरह वो जो है कोर्स अलग करके इन्होंने नहीं दिया है, जो इन्होंने कोर्स दिया है सेमेस्टर वाइज कोर्स बनाया है और उसके टाइटल्स उन्होंने साथ में देके हम लोगों को क्रेडिट्स सूफिया और जी, नंबर ऑफ सूफिया जी जस्ट अ सर। मिनट, आपने सबको कोर्स भेज दिया है, जी जी सब लोग कोर्स देख चुके हैं, जी जो अब सजेशंस हो वो देते बस बस। सजेशंस Right, यस प्लीज। यस important. आप सही बोल रहे हैं चतुर्वेदी जी, स्पीकिंग जी एब्सोल्युटली राइट, हाँ बिकॉज देयर आर सर्टेन सोफिया काइंड जी ऑफ नमस्कार, मैं खरे बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार सर। हाँ, ये जो कोर्स हमारा है, जी जी हेलो, जी इसमें जी सर बोलिए। थोड़ा हाँ, ये जो सेमेस्टर 1 का जी पेपर फर्स्ट है, जी ये काफी लेंदी लग रहा है। एंशिएंट टू अर्ली मेडिवल इंडिया जी टिल 1206। जी अदरवाइज और जो पेपर्स हैं वो ठीक है, इसमें से हम जी मॉडर्न और मेडिवल दोनों ही चूज कर सकते हैं। जैसे जी हमारे यहाँ कंप्यूटर हिस्ट्री चलता है, जी तो जी वी कैन ऑप्ट द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, तो उसके पेपर सारे मिल रहे हैं। ओनली फर्स्ट पेपर ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें इन्होंने एंशिएंट टू अर्ली मेडिवल इंडिया कर दिया। रखा है। हाँ, ये इट स्कूल एमडी, क्योंकि इसमें एंशिएंट में स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ाना है। जी और सर जो मैं सिलेबस मैंने देखा तो वो काफी ब्रॉड है, जी तो इसमें आपको ये होगा जो इसका जो सिलेबस बनाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी हो गया, टाइटल और दे दिया है पेपर का, तो सिलेबस क्या कन्वीनर या यूनिवर्सिटी बनाएगी इसका? कोर्स में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है खरे साहब, जो कोर्स वहां से आया है, कोर्स कंटेंट में आप 30% कुछ अपना ऐड कर यस, सकते हैं। वही मैं सोच रहा था कि इसमें नहीं, कुछ हम लोग जैसे केवल हाँ कोर्स सर कंटेंट इसमें इश्यू ये है कि जो यूजीसी का सिलेबस था उसके हिसाब से एंशिएंट को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इन्होंने जो कह रहे हैं चेंज नहीं हो सकता, इन्होंने एक ही कोर्स कर दिया है, तो इसलिए लेंदी हो गया। अदरवाइज एंशिएंट में अप टू 300 और 300 से 2 कोर्सेज यूजीसी के प्रेस्क्राइब थे, इन्होंने एक कर दिया है, जिसमें कि ये कह रहे हैं कि हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो स्ट्रक्चर है उस पे हम बात कर सकते हैं, जैसा कि संजय जी कह रहे हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर को कोर्स पे हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर पे तो हम बात कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में जो एंशिएंट इंडिया का पहला कोर्स ही है, उसमें एक तो मेजर इशू है कि कोई भी कवरेज साउथ इंडिया पे नहीं है, बिल्कुल भी साउथ इंडिया टच ही नहीं किया इसमें। तो हम इसमें अर्ली स्टेट फॉर्मेशन, डेक्कन एंड तमिलकम रीजन या तमिलहम रीजन को तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा, वो आपका आप देख लीजिए अगर सब एग्री करते हैं। दूसरी चीज, चूंकि आपने 2 कोर्सेज को मर्ज किया है, तो एंशिएंट प्री हिस्ट्री इसमें से पूरी गायब है, तो यू हैव टू ब्रिंग इन प्री हिस्ट्री का एक उसके कंटेंट में आपको लाना पड़ेगा। जो फर्स्ट है उसमें ये 2 मेजर लैक्यूना मुझे नजर आ रहे हैं। अगर कमिटी एग्री करती है तो ये 2, क्योंकि साउथ इंडिया तो आपने बिल्कुल ही निकाल दिया है, तो अर्ली स्टेट फॉर्मेशन, डेक्कन एंड तमिलहम रीजन तो आपको देना ही पड़ेगा। और प्री हिस्ट्री में आप पैलियोलिथिक और नियोलिथिक, आपको आप एकदम से इंडस वैली सिविलाइजेशन पे कैसे आ सकते हैं जब तक कि आप पैलियोलिथिक और नियोलिथिक फॉर्मेशंस की बात ना करें।
तो वो शायद जब मर्ज कर रहे थे तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने सेकंड कोर्स पिक कर लिया, उस पे बना लिया, लेकिन वो फर्स्ट कोर्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। वो इश्यू है, आप देख लिए और कमेटी मेंबर्स की क्या राय है बात कर लें। हाँ, मैडम थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा मैं इसमें। जो एंशिएंट जो हिस्ट्री का पार्ट है, इनफैक्ट एंशिएंट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री बोथ आर सेपरेट सब्जेक्ट। जैसे हिंदी इंग्लिश है तो एंशिएंट का सिलेबस ही अलग होता है, लेकिन इसमें ये इस पे हर पेपर के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है कि टाइम पीरियड क्या रहेगा, लेकिन इसके अंदर इन्होंने टाइम पीरियड ही नहीं दिया हुआ है। इन्होंने लिख दिया टिल 1206 AD। तो कहाँ से कहाँ तक में प्रॉब्लम आएगी, और अगर इसमें कैसे हम लोग चूज करेंगे सिलेबस को, ये एक दिक्कत की बात तो है। अदरवाइज तो बाकी पेपर्स तो मुझे लगता है कि सारे ठीक है। ओके, माननीय मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी कुछ बोले सर आप? माननीय अनिल मिश्रा जी, डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिए। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, अनिल जी बोले। नहीं बोलिए हेरम सर, नमस्कार। आज तो बिल्कुल आपका नमस्कार लग रहा है सर। अरे भाई, तो अब ऐसा है ना, अब आप लॉकडाउन करवाएंगे तो ये होगा। ऐसा है, एक चीज है, वो साउथ वाला जरूर जोड़ लीजिए, और ये जो प्री हिस्ट्री वाली बात है, इसको सब यूनिट में लिया जा सकता है इंट्रोडक्शन में। दिस कैन बी डन। माननीय मिश्रा जी। मैंने संजय भैया, चूंकि मैं देख नहीं पाया हूँ, सही सच बता दूं, काफी व्यस्तता बता रहा, कुछ अपने बहुत परिजन कष्ट में थे। तो मैंने उत्तम सिंह जी को भेज दिया था, उन्होंने कुछ सजेशन सूफिया जी को भेजे हैं। राम जी, इसमें हम पहला जो इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड ट्रेडिशन है ना, बस उतना रख के उसके बाद का चीज निकाल दें, और उसकी जगह पर हम प्री हिस्ट्री, पैलियोलिथिक, प्री हिस्ट्री को ऐड कर दें। बाकी ये जो डिटेल इसमें शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक एज दिया हुआ है ना, इसको हम स्पेल आउट क्लैरिटी से कर दें कि हम प्री हिस्ट्री, पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक को स्पेसिफिक कर दें। और ये कोई जरूरी नहीं है आपको मेंशन करना एमिनेंट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया, कल्हन, आरती मजूमदार एंड ऑल दैट। ये इसको डिटेल देने की जरूरत नहीं है। उसमें तो अपने आप ही जहां जहां जो जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें एज आप या आप हिस्टोरियोग्राफी कर दीजिए, इसमें खाली हिस्टोरियोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो हिस्टोरियोग्राफी में आप सब कुछ कुछ भी ला सकते हैं, कल्हण भी आ जाएगा, राजतरंगिणी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, और आप मॉडर्न हिस्टोरियंस भी ला सकते हैं। But Abha ji, it would add a lot of things which otherwise would make it much more lengthier than what it is now. Please try to curtail it, not to add to it. Because historiography, I think at this level, वो जहाँ रेफरेंस आएगा वो अपना बच्चा करता रहेगा, पढ़ता रहेगा। We should not go for historiography. It is a bit lengthy. मैं हिराम जी से बिल्कुल सहमत हूँ। हमको खाली इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर, प्री हिस्ट्री एंड मतलब प्री हिस्ट्री कर दीजिए, या आप ऐसे कर दीजिए पैलियोलिथिक, प्री हिस्ट्री हाइफन और या कोलन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो हम उसके बाद इंडस वैली पिक कर सकते हैं आराम से। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, थैंक यू। रेस्ट सोफिया, आप बाकी सब डिटेल्स निकाल दीजिएगा, पहली लाइन को रख के बाकी सब डिटेल्स निकाल दीजिए। जी जी जी, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, वो आपको वो साउथ इंडिया तो ऐड करना ही पड़ेगा, आप एक कहीं तो डाल दीजिए। ये मैं इसमें एक छोटा सा कहना चाह रही हूँ कि जहां आपने ये यूनिट रखी है ना, कस्टम्स, रिचुअल्स एंड बिलीफ्स ऑफ हिंदू सिस्टम्स, ये आप यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके पास सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री पे आपने एक अलग यूनिट रखी है, तो अलग कोर्स रखा हुआ है, तो ये सब हम उसमें ले जाएंगे। यहाँ पर जब आप एक ये यूनिट हटा देंगे तो उसकी जगह पे आप आराम से साउथ इंडिया कैसे आप बिना अर्ली स्टेट फॉर्मेशन इन डेक्कन एंड तमिलकम को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। इस यूनिट को अगर सब एग्री करें तो ये निकाल सकते हैं। हटाने की बाइंडिंग जो है हटाया नहीं जा सकता। आप कोर्स कंटेंट में कुछ ऐड करा दीजिए 30%।
हटाने को तो देखिए पढ़िए ना उसमें जो रूल। क्यों नहीं हटाया जा सकता जब हम 30% को मॉडिफाई, देखिए यूजीसी की रूलिंग है कि 30% को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो मॉडिफाई करने का मतलब ही है कि हम कुछ चीज निकालेंगे और कुछ चीज अपनी ऐड करेंगे। हमारा 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। नहीं मैडम, मैं यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि जो जनरल मीटिंग में तय हुआ है वो ये तय हुआ है, क्योंकि 1 साल बाद अगर छात्र छोड़ेगा और वो दूसरी जगह अगर पढ़ने के लिए जाता है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स में और डिप्लोमा में 2 साल बाद है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो दूसरे विश्वविद्यालय में जाता है वहां पर तो उसे ये समस्या होगी कि उसका सिलेबस मैच नहीं करेगा, इसलिए आप इसलिए ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट में प्रॉब्लम। मैडम ये सभी के, ये यूजीसी का खाली आपकी यूपी के लिए नहीं है, ये अक्रॉस बोर्ड इंडिया के लिए है। तो आपका बच्चा अगर इंडिया में कहीं जाएगा तो उसने तो साउथ इंडिया पढ़ा ही नहीं, और जगह के हम लोगों के कोर्सेज देखिए उसमें सब में साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया कोई आपके यहाँ से यूपी से पढ़ के साउथ इंडिया से सेकंड ईयर और थर्ड ईयर करेगा तो कैसे? तो यूनिफॉर्म तो आपका होना ही पड़ेगा ना। ये यूनिफॉर्मिटी आपकी खाली यूपी के लिए कन्फाइंड नहीं है। 30% ही आप मॉडिफाई कर रहे हैं ना, ज्यादा तो कर नहीं रहे। 1 यूनिट आप निकाल रहे हैं, 2 यूनिट आप निकाल रहे हैं, उसकी जगह दूसरी 2 यूनिट ला रहे हैं, विच इज नॉट मोर देन 30%। अगर हिराम वगैरह खुद समझदार है, आप बता सकते हैं, उस पर कॉमेंट कर सकते हैं। आपसे सहमत और ऐड कर दीजिए उस चीज को, लेकिन आप अधिकांश डिलीट मत करिए, मेरा तो ये निवेदन है। क्योंकि चल करके बहुत समस्या आएगी। यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस बन रहा है और आपको ऐड करने के लिए तो मना ही नहीं किया है, आप ऐड कर लीजिए। जैसे आप सुपर टीचर कह रहे हैं, सुपर टीचर का साइंस सोफिया जी, अगर आप ये पॉलिसी फॉलो कर लेंगी तो आपको आगे के जब कोर्सेज हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। आपने भक्ति एंड सूफी मेन उसमें कोर कोर्स में भी दे दिया, भक्ति और सूफी सोशियो इकोनॉमिक में भी दे दिया, तो बच्चा सेम पढ़ रहा है, वो तो आपको डिलीट करने ही पड़ेंगे। आपकी कई यूनिट्स में कई जगह प्रॉब्लम है, उसको अगर आप एग्री करें बाकी कमेटी मेंबर्स को, अगर उन्होंने सिलेबस देखा हो तो सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में जो है वो सूफी और भक्ति दे दिया, वहीं पर आपने मेन टेक्स्ट में भी मिडिवल इंडिया में भी सूफी भक्ति दे दिया, तो दोनों जगह वो सेम पढ़ करके फिर आप ऐसे कैसे नहीं, क्योंकि ये यू हैव टू सी द होल सिलेबस इन टोटो। आप एक उसको हिसाब से नहीं कर सकते, कुछ हमें निकालना पड़ेगा, कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा, हमें अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी। और 30% में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, उसमें डिलीट भी कर सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज ने किया, हम लोगों ने भी किया उसी तरीके से। हमारा तो नेशनल सिलेबस है, एक हमारा तो सारा बच्चा अक्रॉस बोर्ड है इग्नू का। मैम अभी तो मैं ये कहती हूँ कि अभी डिलीट करने के लिए जो है हम उसे डिलीट नहीं करते हैं, आगे हम देखेंगे। दिस इज द फर्स्ट मीटिंग दैट वी हैव एंड वी विल सी लेटर हाउ कैन द थिंग्स बी डन। सो लेट इट गो ऑन लाइक दिस एंड लेटर ऑन व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स विल बी देयर वी विल गो अहेड विद द सेम। This is the humble request from you, and we need to generously understand for the things that have been given to us, and where the duplication is there, the same kind of topics are being there, that we can bending. Okay. Take the opinion of the other experts also. Okay. Hiram sir. Yes, the duplication should be removed. Okay, what Professor Abbas Singh is saying is very correct. Very but correct. The problem with your university is that you cannot delete, you can only add. So increasing the syllabus would not be good for the students. आप ज्यादा कितना पढ़ाएंगे उनमें? दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जो आप लोग का सजेस्टेड रीडिंग है ये बहुत फॉल्टी है, ये इससे आपको कोई नॉलेज तो मिलने का नहीं। आप लोग कोई लेटेस्ट ये बुक्स नहीं ऐड कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन इधर आपका एशियन इंडिया हिस्ट्री एंड कल्चर पे एक किताब नहीं है, इसमें आपका सोसाइटी एक सिलेक्शन में कोई किताब नहीं है, फूडिज्म में कोई किताब नहीं है, तो आप लोग कैसे पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को? थोड़े आप सजेस्ट कर दीजिए कुछ रीडिंग, सजेस्टेड रीडिंग्स में आप कुछ कर दीजिए। क्या आप आर शर्मा को रखिए, फूडिज्म एटलीस्ट सुबह तो रखिए। शतरंजी खेड़ा सिलेक्शन के ऊपर इनका है, प्रोफेसर आर सी गौर की किताब है। किसी झा साहब का एशियन इंडिया नहीं होगा। आपका आर्कोलॉजी में क्या, आपने आर्कोलॉजी का पूरा जो दे रखा है इसके अंदर पढ़ने के लिए, आर्कोलॉजी में क्या रखा आपने? कोई सिलेबस है ही नहीं। एशियन इंडिया कोई लोग हैं तो सजेस्ट करें इसमें। ये मिडिवल में भी आ रहा है, आपके यहाँ के जो सिलेबस है
सिलेबस जो है आपके मिडिवल इंडिया के जो हम लोग नेक्स्ट में आएंगे उसका इतना फॉल्टी सजेस्टेड रीडिंग है कि आप ताज्जुब करेंगे कि बीए में इस तरह से पढ़ाया जाएगा। बेसिक किताब तो है ही नहीं उसमें। तो आप लोग जरा सा सिलेबस को अपडेट कीजिएगा फॉर सजेस्टेड रीडिंग, मैं ये कहने चाह रहा हूँ। बाकी जो डुप्लीकेशन जहाँ है उसको हम लोगों को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि डुप्लीकेशन के साथ बहुत कंफ्यूजन होगा। और 30% तो कर सकते हैं तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। हिराम जी, उसमें आप देखिएगा कस्टम्स को तो हम सोसाइटी में लेके जाएंगे ही, नेचुरली सोसाइटी में ले जाइए, ये लेकर के सोसाइटी में ले जाइए, उसकी जगह यहाँ साउथ इंडिया ले आइए। ये मेरा कहना है, हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, उसको हम री एडजस्ट कर रहे हैं कोर्स के हिसाब से। बिल्कुल आई एग्री इन टोटो। I agree to what you have said, and I also agree to what Professor Ali Attar had said. Because it is necessary, you have to take certain textbooks as base. Otherwise, how would the students study? No, standard books must be mentioned there, right? Yes. So, Sophia ji, note ठीक है सर, ये सर टेक्स्ट बुक्स सर ऐसा है अली अतर सर, आप ये जो टेक्स्ट बुक सजेस्ट कर रहे हैं ये सब आप मुझे, हाँ सर, आप ये भेज दूंगा मैं, सुफिया जी आप मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं उसमें ऐड कर सकूं। उनको हाँ अलग से जो है सजेस्टेड रीडिंग्स में डाल दीजिएगा। ओके जी। एनी अदर सजेशन? फाइनली आपने ये एंशिएंट इंडिया के पेपर के लिए क्या डिसाइड किया? साउथ इंडिया को ऐड कर रहे हैं और उसका में से वो डिटेल निकाल के आरडी वो रहने दीजिए। सोफिया आप एक बार म्यूट कर दीजिए। जी मैम, अगर अलाउड होगा तो हम लोग इसमें चेंज कर लेंगे। तो आप ऐसे कर लीजिए, इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर कर दीजिए एंड ट्रेडिशन, और शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, खाली इतना रहने दीजिए, बाकी सब गायब कर दीजिए। जी, उसी में प्री हिस्टोरिक एज में सारा आ जाएगा, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। इस वाली यूनिट को हटा दीजिए 7, उसकी जगह सेकंड यूनिट इंडस वैली, थर्ड यूनिट के बाद फोर्थ यूनिट, उसमें फोर्थ यूनिट कर दीजिए अर्ली स्टेट फॉर्मेशन इन डेक्कन एंड तमिलकम। जी, बस इतना चेंज कर दीजिए। और आगे फिर हम वी कैन एज वी विल फाइनलाइज वी कैन जस्ट गो बैक टू आवर फर्स्ट पेपर। ठीक है मैम। मैम जो भी आप सजेशंस दे रही हैं इनको अगर आप ईमेल पे मेरे भेज देंगी तो इट विल बी बेटर, ताकि मैं फिर इन सजेशंस को, सोफिया जी इन सजेशंस को ए और बी शीट अलग करके कर लीजिएगा जी, और फिर वो रजिस्ट्रार गवर्नमेंट को भी भेज सकते हैं कि हाँ दीज आर डिफरेंसीज एंड दीज आर द फॉलीज, तो अलग से बना लीजिएगा आपका। जी बिल्कुल, विद द सिग्नेचर्स ऑफ द एक्सपर्ट्स कि दिस इज द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, तो अलग बना। जी सर, जी ये कर लेंगे। और कोई सजेशन बाय एनी अदर मेंबर? त्रिपाठी जी कुछ सजेशन आपका? त्रिपाठी जी कुछ बोलें। आप अपने सर आप अनम्यूट करिए अपना, वो अनम्यूट करिए ना अपने आप आपको, अभी आवाज नहीं है। त्रिपाठी जी अनम्यूट करिए। हाँ सर, हाँ, अरे अभी भी नहीं है, अरे अनम्यूट करिए। हाँ अब आई आवाज। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में डॉक्टर फरीद जी ने जो सुझाव दिया है उससे पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। बहुत ही लेंदी है वो, और जो मैम आभा जी और चतुर्वेदी जी ऑथर साहब ने जो कहा है उनके विचारों से पूरी तरह से मैं सहमत हूँ, और जो उन्होंने जोड़ने के लिए कहा है वो हम ये चाहते हैं कि ये सजेशन आगे भेजे जाएं जिससे कि वो इम्प्रूव हो सके। बिल्कुल सोफिया जी, उनको अलग से सेपरेट शीट में पूरा नोट कर लीजिए सारे सजेशन जो, और साहब ने जो कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स बताई हैं कि फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, सो दे मस्ट गेट फ्रॉम हिम एंड मस्ट बी इंक्लूडेड देयर। बाकी सिलेबस सही है, बाकी सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, so books are very important. They are of paramount importance, which play a vital role in shaping and sizing the students' knowledge. Okay. जी okay. So
आई थिंक इतना अभी इस फर्स्ट मीटिंग के लिए काफी है हम लोगों का सजेशन। और जब हम लोग इसको और आगे ड्राफ्ट करेंगे देन वी विल डिस्कस इट फर्दर, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है। नहीं, जो एक्सपर्ट्स ने राय दी है उसको जी, अलग वो से तो बिल्कुल ऐड कर अच्छे ही से रहे। नोट कर लीजिएगा अलग से, और जी, एक उस बिल्कुल। पे हाँ पूरी उनकी जो ओपिनियन है, बिकॉज वी आर नॉट द मैन ऑफ हिस्ट्री बट जी, whatever their suggestions have come, they will be जी, of paramount importance जी। for the teachers. उनको should prepare in separate sheet, okay? तो फिर ओके सर। रजिस्ट्रार उसको भेज भी सकते हैं कि कहाँ जी हाँ। डिस्क्रिपेंसीज हैं, क्या चीजें हैं। जी, बाकी जो सिलेबस है उसमें जो 30% की जो लिमिट है उसके अंदर जी, ही आप नोट कर लीजिए अलग उसमें क्या क्या नोट कर लेंगे। चीजें। जी सर। जैसे उन्होंने मैडम ने आभा सिंह ने प्रोफेसर आभा सिंह जी ने कहा जी, कि तमिल साउथ छोड़ दिया गया है, साउथ जी लेना है। जी जी, साउथ कहाँ लेंदी ज्यादा है। चतुर्वेदी जी ने भी जी, जो चीजें बताई हैं और अली साहब ने, जी, तो क्योंकि बुक्स जी, का रोल बहुत ही वाइटल है। इफ द गुड बुक्स जी, स्टूडेंट्स जी, आर जी। नॉट गोइंग टू कंसल्ट, रियली enhancement of knowledge is not going to be possible there. So this is the Exactly. most crucial and most important point for all of us. The suggested readings must Yes. be up to the mark. So from Ali Sahab, you should collect that the information of those good books, which will Yes. really be paying मैं मैडम को vital. भेज दूंगा, किताबों का लिस्ट मैडम को भेज दूंगा। Thank you very much, sir. ठीक है सर। थैंक यू सर। माननीय चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे प्रोफेसर आभा सिंह, थैंक यू। I would rather propose a vote of thanks to all for मैं a सभी nice को कह रहा meeting. हूँ तो हैरम भाई कैसे हैं आप? बस हाँ, जो इनायत है, एक्सपर्ट इनायत है। जो एक्सपर्ट्स की राय है वही बड़ी हमारी होती राय ना। सीनियर आबादी अदावर से। तो ये मीटिंग का बस एक ही पे डिस्कशन हुआ, बाकी कोर्स पे हम नहीं बात करें? नहीं, और देख लीजिए और कहाँ पर क्या चीजें हैं और भी। आभा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सोफिया सेकंड अली- पेपर पर आप आ जाइए। जी, जी मैम बताएं। सेकंड पेपर में एक तो छोटा सा करेक्शन है, वो लोदीज जी। की स्पेलिंग में IES जी। है तो ई हटा हाँ। दीजिए। वो हम पहले ही करवा चुके हैं। वो हाँ सर ने पहले, अच्छा। हरम सर ने पहले अच्छा, करवा इसमें point out दूसरा कर जो दिया। मनसबदारी खाली दिया है, इसमें जागीरदारी ऐड कर दीजिए, क्योंकि खाली मनसब नहीं है, जागीरदारी भी आप ऐड कर दीजिए। जी, तीसरी चीज जो है वो अगर आप चाहें तो वैसे तो बाकी का किया हुआ है, रिलेशंस विद चीफटेंस भी अगर ऐड कर दें तो वो क्लैरिटी आ जाएगी बच्चों को कि उसको भी पढ़ाना है। और नोट कर लीजिए सोफिया जी जी। मैं तो नोट करती जा रही हूँ। चौथी चीज जो है जो मैं कहना चाह रही हूँ, इसमें डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर पेंटिंग दिया हुआ है। आपका सोशियो मतलब इकोनॉमिक हिस्ट्री पर है, तो अगर ये डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग इधर देंगे तो फिर आप वहां पे एंशिएंट में से कैसे निकाल सकते हैं? तो ये मेरा मानना ये है कि या तो आप एज अ पॉलिसी डिसीजन ले लीजिए कि इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री ही हम डिस्कस करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल हिस्ट्री का पार्ट हम वो वाले पेपर में ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगा और चीजों को कवर करने के लिए। इसी तरीके से जो सूफीज्म एंड भक्ति मूवमेंट है, वो जी। पूरी की पूरी यूनिट ऑलरेडी आपने दी हुई है सोशियो इकोनॉमिक पेपर में, मिडिवल इंडिया वाले में। तो ये रिपीट हो रहा है, ये हाँ, आपको ये तो मैम बात हो गई है कि डुप्लीकेशन को चेक करके उसको रिमूव कर देंगे। नहीं तो फिर डुप्लीकेशन आप चेक करके कहाँ ले जाएंगे? ये आप दोनों को सोशियो इकोनॉमिक में, या तो आप पॉलिसी डिसीजन ले लीजिए कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको सोशियो इकोनॉमिक वाले में डालना है, तो फिर आप सारे ही पेपर्स में से यूनिफॉर्मली करिए। अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो यूनिफॉर्मली सारे पेपर में फिर वो चीज लाइए। मेरे ख्याल से जब आपका सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री का अलग पेपर है, जिसमें मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि कल्चर भी पार्ट है, उसमें ये आप सब ले जाइए तो वो बेहतर होगा। इसी तरीके से हम कस्टम्स को भी वहां पे ले जा रहे हैं, तो दैट वुड बी बेटर, वो आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है मैम। और मैम इसके अलावा मेरा तो यही कमेंट है मिडिवल वाले पर। और लैंगदी का तो ये है कि बीए जनरल पैटर्न को फॉलो किया आपने, तो उस चारों पेपर बेसिक है जिसको कि उन्होंने लैंगदी बनाया, ये बड़े बड़े एरिया को कवर किया। तो हम इसमें हम लोगों ने जो पैटर्न फॉलो किया है कि बीए जनरल वाले बच्चों को हम
डिबेट्स में एंटर नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो जनरल हिस्ट्री एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, डिटेल डिबेट्स में नहीं जा रहे हैं। जबकि ऑनर्स में हम पूरे डिटेल्स में डिबेट्स में गए, क्योंकि वो उसमें छोटे छोटे हम लोगों ने 6 क्रेडिट के किए, तो वो पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं। उस तरीके से वो लेंथी होने के बाद भी उसको हम एवरेज कर सकते हैं। तो एक जनरल हम पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री की हम अंडरस्टैंडिंग उनको प्रोवाइड करेंगे। सो दैट शुड बी क्लियर टू व्हेन यू विल बी मेंशनिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसमें आप ब्रीफ आउट कर सकती हैं कि ये हमारा फोकस है। ठीक है मैम, नोट कर लिया है मैंने। ओके, फाइन। डॉक्टर अली अतहर, आप एंशिएंट में कुछ और सजेशन तो नहीं देना चाहते? नहीं, एंशिएंट में हमें नहीं करना मैडम। आबादी ने जो कहा वो तो काफी है। हमें एसोसिएशन वो किताबों का लिस्ट वो बना देंगे। आबादी आप भी कुछ बना लीजिएगा। हाँ, बुक्स का जरूरी है मैम, कुछ लेटेस्ट बुक्स वगैरह। देखिए किताबें तो पूरी लिस्ट बहुत सारी है, ये तो मैट सोफिया को ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो हर एक में इट रिक्वायर्स लेटेस्ट का, वो तो अदरवाइज इट वुड बी टू मच अ टास्क टू बी डन। सो लेट्स सोफिया डन एंड वी कैन ऐड इट ऑन, and there is lot of material online available which should be given जी। एक मुझे मेरा आगे वाले पेपर में यहीं पर है, हम या आगे चलें? क्योंकि नहीं मैम, चलिए आप आगे चल सकती। देखिए बाकी लोग भी मॉडर्न वाला कोई हो तो मॉडर्न वाले पेपर पर अगर वो कमेंट करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मॉडर्न मेरा एरिया नहीं है तो मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन इसको स्ट्रक्चर ऐसा किया है कि उसमें मुझे काफी कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं है। लेकिन मेरे को बस एक छोटा सा मुझे कमेंट है कि जो एक आपका पेपर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, तो एक तो आपने किया है 1453 टू 1850 जी, और एक किया है 59 से शायद, तो ऐसा क्यों किया है? मैम सिलेबस हम लोगों ने डिजाइन नहीं किया है, तो इसलिए अब जो वहाँ से सिलेबस आया मैडम, ये गवर्नमेंट कंसल्टेड द डिफरेंट एक्सपर्ट्स एंड देन प्रिपेयर्ड एंड देन इट हैज बीन सेंट टू द यूनिवर्सिटी। वो दोनों पेपर सीक्वल में है इसलिए कह रही थी। नहीं ठीक है, वो आपकी नोट कर लीजिए कि जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है उसको एक सेपरेट शीट में नोट कर लीजिए जी, वो अपना गवर्नमेंट को भेज देंगे बाद में। ठीक है। Now you can't do anything with the course. Because there is binding. Whatever the proforma has taken place, where are the certain limitations we cannot do. So, Sophia, you have to note all the points and all the opinions suggested by the different experts, and their opinion is of paramount importance, no doubt. So you should keep on noting just on a paper, and then you should be getting it typed, and after that send it to the registrar, and the registrar will be sending all that. Okay. Yes sir, that I'm doing. I'm noting down all the suggestions here, और फिर उसके बाद we can have another meeting. मॉडर्न में देखिएगा एक पेपर में लैंड रेवेन्यू और वो आपने दिया है, उसके बाद में भी एक पेपर में पूरा लैंड वो सब है, तो ये डुप्लीकेशंस हैं, ये सब आपको देखने पड़ेंगे। ये एक्चुअली हम लोग फेस टू फेस बैठे रहते तो एक यूनिट को वो करते प्रॉपरली, ये आपको देखना पड़ेगा। ये सब डुप्लीकेशंस हैज टू बी एक जगह करिए। और नेशनलिज्म हम आपके पास एक कोई मॉडर्न का जरूर होना चाहिए जो कि नेशनलिज्म वाले पेपर में, क्योंकि नेशनलिज्म तो आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे खत्म कर देते हैं, नेशनलिज्म फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे कैसे खत्म हो जाएगी आप ये बताइए ना नेशनलिज्म का के पेपर में। तो ये इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन समवेयर आई एम अनकंफर्टेबल। दोज एनीवन हु इज एक्सपर्ट ऑन दिस एरिया कैन कमेंट एंड यू कैन लुक इनटू दैट दोज कमेंट्स। यस मैम, वो अब हम लोग बैठ के इसको फिर से एक बार जो सजेशंस हैं उनके हिसाब से चेकआउट करते हैं, एंड देन जो भी चेंजेस इसमें पॉसिबल हो सकते हैं वो चेंजेस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एनी अदर सजेशन फ्रॉम एनी अदर एक्सपर्ट? I think it's okay.
Okay, then Sophia ji, Okay. you must Okay. have noted on all the points in the separate Yes, sir, sheet. I have noted. In separate sheet, they must be just elaborated in depth Yes. and in detailed way, and then you should prepare them, getting typed that you have to send to the registrar in separate sheet. Okay. Okay, These sir. are Okay. सोफिया, तो उसमें जी एंशियंट वाले में आप देख लीजिएगा, राष्ट्रकूटास चोलास को जी ब्रॉड उसमें उसी में या तो अर्ली स्टेट फॉर्मेशन में ही डाल दीजिएगा, डाल हालांकि दें। अर्ली स्टेट फॉर्मेशन में खाली नहीं आ सकता, उसी में चाहे आप कर दीजिए राष्ट्रकूटास चालुक्यास चोलास जी का भी फॉर्मेशन, वो जी आपका उसमें से मिसिंग है एक्चुअली। जी ठीक है मैम, ये सारे सजेशंस मैंने नोट कर लिए हैं और हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। सो okay. थैंक यू एवरीवन फॉर Thanks a lot. being here, Thank you. Thanks to sparing your everybody. valuable time, giving valuable suggestions to us, and Undoubtedly. special thanks to Dr. Vijay Khare, who has lost his wife to this COVID very recently, and still he is here. My condolences, sincere. Okay. My deepest Upon- condolences. From the side of the university, on behalf of university, heartiest condolences to you, sir. Deep condolences. Very sad, very sad. वेरी सैड। So, Very sad. and may the Lord provide the strength at this time to hold up your family members. It's very sad. Om Shanti, Shanti, Shanti. Yanu, ek Okay, so I think we can end the meeting here. okay, thanks. थैंक यू वेरी Thank मच you. एंड All स्टे the सेफ। best. Take care. Stay Stay safe. safe. Yeah, Stay bye. safe, all. everyone. Thank you Yes. for your kind cooperation and valuable suggestions. Thank you very much. Thank you. Thank you.